2014. He was also organizing chairman of MOSCON 2013, which we all ophthalmologists still remember. He was organizing chairman of GMC reunion in second decade celebration, silver jubilee, and third decade celebration. He was director of Rotary Club of, he was medical director of Rotary Club of Nagpur North for 5 years. He was president of Ophthalmology Society, Maharashtra Ophthalmology Society in 2019. And under his guidance, MOSCON 2019 was a huge success. He has won several awards at regional, state, and national level conference. He has won he has won prestigious V.K. Chitnis Oration Award. He is known for performing live surgery all over Maharashtra and all over India as well. He is married to a beautiful dentist, Dr. Sangeeta, and he's blessed. They both are blessed with a beautiful daughter, Mehak. He is presently a director of Akshara Institute, which has got 2 branches, one in Ramdaspet and one in Indora. And he is a president of International Society of Manual Small Incision Cataract Surgery. And also he is an executive member of All India Ophthalmology Society. He has been president of, मुझे लगता है नागपुर के president हो गए, विदर्भ के हो गए, महाराष्ट्र के हो गए, और अभी बस AIOS का president बनना बाकी है. So we welcome you, sir, and we wish that we will see you as a AIOS president someday. Welcome, sir. Thank you so much for the wonderful introduction, Dr. Pradnya. Here I recognize the presence of our past president, Dr. Viral Shah, sir, our co-president, JC Sunil Gupta ji. I welcome you all and all the participants who have joined us. यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी Gopal R sir has been a pillar strength for JCI Nagpur Medico, a past president, and I request you, sir, to kindly guide the whole of our team and the participants who have joined us. Over to you. Thank you, Dr. Swati. Before I begin, I am really thankful to Dr. Pradnya for making me actually a bigger picture than what actually I am. So thank you, Dr. Pradnya, for all the good words that you have mentioned. Something I would like to say about the JCI Nagpur Medico. Since it's a club of all the medicos, it's not that medicos are only a part of this JCI institution, what I call. It is an institution where you develop yourself in toto. More so ever, why? Because we as medicos are never exposed to something other than medicine. We know how to cure patients, but now coming days, we are going to have a tough fight, not only with the competitors, but the corporate world. So we need to encourage ourselves. We need to update ourselves apart from what medicine teaches us. It has to be a financial increment in ourselves, and it has to be an institutional, and whether it is an administrative works. We need to develop ourselves apart from being a medico. And I'm really thankful to Dr. Swati for inviting me, and a big compliment to her, because she has definitely, I've seen JCI Nagpur Medicos for so many years, and I can vouch that she has taken a big leap for this JCI Nagpur Medico to take it to a totally different level. Congratulations, Dr. Swati. Now coming to the topic that she has chosen about the eye care, I'm sure we have a wonderful speaker in Dr. Kavita Dangra. She's a cornea specialist, and she'll answer all your queries and questions. But just to begin the thought of what the ophthalmology means to Corona, I still remember about 2.5 months back when I was discussing with AIMS people, All India Institute of Medical Sciences in Delhi. And there was a thought going on about the correlation between this COVID and ophthalmology. And the biggest and the first thought that came to everyone's mind was the conjunctivitis. So people were looking at the correlation between COVID and conjunctivitis. And one step ahead, even we were thinking of having a Corona testing done by conjunctival swab. Apart from that nasal and the throat swab that is being taken, if we can have the conjunctival swab and diagnose this COVID-19, that would be a big leap and big movement forward, that we can diagnose Corona by doing just a conjunctival swab. If you can correlate things like between COVID and conjunctivitis. One more thing which I would like to mention about the impact of what this pandemic has done to eyes. The screening time or the social media engagement of the people, which used to be about a 150 minutes, that is 2.5 hours, has gone to 280 minutes, more than 4.5 hours.
So that is the impact that it has done during the pandemic, that people are more so ever watching television or mobiles or some social media, which has led to many complications, which I'm sure Dr. Kavita is going to enlighten us. So these things which were not even existing before the pandemic have cropped up. And I'm sure this conversation, this question answer session, Dr. Kavita, who is a cornea specialist, and apart from being a very good ophthalmologist, every questions are going to be answered by Dr. Kavita. And I once again compliment Dr. Swati for taking up this subject in JCI Nagpur Medico as one of the leading subjects. Thank you, Dr. Swati, and wish everyone all the very best. Thank you, sir. Thank you very much for your kind words and motivation for the team, and also to the speaker. Thank you so much. Now, to know more about our speaker for today, I would like to invite Dr. Anuradha Punyani for her introduction. Yeah, hi. Am I audible? Yeah. Eye is the mind's window, and beauty is in the eye of the beholder. We keep hearing these sayings, but today all of us are privileged to have an eminent ophthalmologist amongst us, JC Dr. Kavita Dangra ma'am. Ma'am is an alumni of MIMSR Latur and has completed her DNB in ophthalmology and is a cornea specialist. She has presented several posters and articles and was awarded runner-up for case presentation in private practitioner category in March 2020. She has also been the faculty at various lectures, workshops, and conferences, including MOSCON 2019. She has also received a photography award by Ophthalmologic Society of Nagpur, which completes her profile as a great individual. Indeed, we are honored to have you today, ma'am. We welcome you. Thank you so much, Dr. Anuradha, for the introduction. And I think directly we'll go to the speaker now, and the screen is all yours, Dr. Kavita. Over to you. Thank you, Swati ma'am. I would like personally, initially, I would like to thank JCI Nagpur Medico team for giving me this opportunity and a platform where we, under the heading of Know the Disease. I am thankful to Gopal Arora sir also for showing such a faith in me. And thank you for the kind introduction, Anuradha. I also thank all the participants who have joined today. Should I share the screen and start the presentation, ma'am? Yes, ma'am, definitely. Just before going ahead, I would like to thank Gopal Arora sir for joining us today, and I would request him to stay back with us for the session, sir, just to sum up at the end. Yeah, today lecture is something to know about the eye, and I want to help. This is everything about the eye care, what we will be having. इसको हम थोड़ा हिंदी में भी बीच बीच में बोलेंगे. आज का ये जो लेक्चर सीरीज है जहाँ पे आंख के बारे में हमको बताना है, तो इसको सरलता से सीखने के लिए मैंने इसको कुछ विभाजन किए हुए, जिसमें पहले विभाजन में हम देखेंगे कि बच्चे और जो प्रेजेंट ऑनलाइन स्कूलिंग है उसके ऊपर हम फोकस करेंगे. दूसरा जो भाग है जिसमें अडल्ट्स के बारे में हम कुछ जानकारी लेंगे. तीसरा एल्डर्स के बारे में, और हमको बहुत जिज्ञासा होती है कि दवाई कैसे डाली जाए, उसके बारे में कुछ शब्द मैं बताऊंगी. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई डोनेशन एंड कोरोना आई केयर. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेक्शन. बच्चों में अक्सर ऐसे होता है कि कुछ नजदीक से देखते हैं या पानी आने लगता है, टीवी या कुछ पढ़ने के लिए उनको बहुत स्ट्रेन होता है. लेकिन हमारी यह धारणा होती है कि मेरे दादाजी को तो कभी चश्मा नहीं लगा, उन्होंने तो काफी लंबे समय तक बगैर चश्मे के वो पढ़ते रहे, ऐसी हमारी धारणा होती है. लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि रिफ्रैक्टिव एरर बहुत कॉमन है, और इसका जो डायग्नोसिस है वो बहुत कम होता है, क्योंकि हमें पता नहीं होता, हमें ऐसे लगता नहीं कि बच्चों को भी चश्मे का नंबर लग सकता है करके. बच्चों को प्लस या माइनस ये दोनों भी नंबर लग सकते हैं. उनकी जो जांच होती है डिटेल करनी पड़ती है, क्योंकि बच्चे हम जैसे बड़े कोऑपरेट करते हैं, बच्चों में उतना कोऑपरेशन हमको उस समय पे नहीं मिलता. बच्चों का जब नंबर निकलता है चश्मे का, तो वो लाइफ लॉन्ग सेम नंबर नहीं रहता, उसको हर 3-6 महीने में जांच करके उसका नंबर हमको हर बार बदलना पड़ता है.
इसके अंदर डॉक्टर का पेशेंस तो रहता ही है बच्चों का नंबर निकालते समय। जो पेरेंट्स होते हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको पेशेंस भी रखना है और बच्चों को ये भी बताना है कि हर घड़ी आपको ये चश्मा नंबर पहनना है, ताकि आपको इससे अच्छा और क्लियर दिखे। दूसरा कुछ कॉमन चीज है जिसको हम लोग कांच बिंदु या बच्चों का कांच बिंदु जिसको ग्लॉकोमा बोलते हैं, इसको लगभग 30,000 इन 1 के इंसिडेंस में देखा जाता है। इसमें आंख बड़ी दिखती है क्योंकि बच्चों की जो उम्र होती है आंखों की डेवलप होने की, वो इलास्टिक रहते हैं टिश्यूज, और क्योंकि इसके ये जो कांच बिंदु होता है इसमें आंखों का प्रेशर जो होता है वो बढ़ने के कारण आंख की ग्रोथ बड़ी होती है, और इसमें सामने की जो पुतली होती है और ओवरऑल जो आंख होती है, एम आई ऑडिबल? Yes, yes. आंख की जो पूरी ग्रोथ होती है वो पूरा बड़ा होता है। तो बच्चों में इसकी जो जांच होती है हमको भूल दे करके करनी पड़ती है। इसमें जो अवेलेबल मेडिकल ट्रीटमेंट है वो ड्रॉप के फॉर्म में होता है, और इसको सर्जरी वाइज भी हम लोगों को ट्रीट करना पड़ सकता है। स्क्विंट या तिरछापना ये भी बहुत कॉमन है, जिसको हम लोग ऑलमोस्ट 100 की कगार में अगर देखे जाए तो 3 से 5% हमको ये लोग दिखते हैं। इसमें बहुत सारे कारण होते हैं, कोई एक पर्टिकुलर कारण नहीं लेकर के चल सकते। कभी कभी हेरिडिटरी भी इसमें एक रिस्क फैक्टर होता है। इसमें भी छोड़ ना दिया जाए कि बच्चा तिरछा है करके, इसके लिए हमको उसको जांच करना जरूरी है। इसमें कई प्रकार के ट्रीटमेंट्स अवेलेबल होते हैं कि बच्चे को कभी चश्मे से भी वो ठीक हो जाता है, कभी उसको पैचिंग यानी एक आंख हम लोग बंद कर देते हैं ताकि दूसरी आंख से बच्चा देखे और वो आंख में ग्रोथ हो या वो आंख लेजी ना हो जाए। कभी कभी इसमें ऑपरेशन की भी जरूरत हम लोगों को करनी पड़ सकती है, ताकि दोनों आंखें पूरी अच्छी तरह से ग्रो हो बचपन से। ऐसा नहीं सोचना है कि बच्चा बड़ा जब हो जाएगा तब उसको ले जा करके दिखाएं। कम उम्र से बच्चे को जब लगे कि स्क्विंट या तिरछेपन हो रहा है तब उसको जाकर के जांच करवाएं। कुछ कॉमन कॉजेस में यहाँ पे ले रही हूँ कि जैसे कंजेनाइटल कैटरैक्ट, जब बच्चा पैदा होता है तभी से दोनों पुतलियों के बीच में हमको सफेदी दिखने लगती है, तो ये भी बहुत कॉमन है। इसका भी इलाज सर्जरी ही होता है, जिसके अंदर बच्चों का मोतिया निकाला जा सकता है। ऐसे नहीं सोचना है कि बच्चे को बड़ा होने के बाद हम लोगों को लेके जाना है, क्योंकि अगर ऐसे करेंगे तो बच्चा कभी सामने वाली चीज जो है वो देख नहीं पाता। टोसिस या फिर आंख का सामने का पर्दा गिरना, तो ये भी इसमें कभी कभी एक आंख या कभी कभी दोनों आंख बच्चे की नीचे गिर सकती है। इसको बचपन से ही ये हो सकता है या थोड़ी उम्र बड़ी होने के बाद भी ऐसा देखने में आता है। इसके अंदर जो भाग आंखों का वीक होता है उसको ऑपरेशन द्वारा थोड़ा सा टाइट करके उसकी जो पलक जो नीचे गिरी हुई है उसको हम लोग ऊपर खींचते हैं। एलर्जी बहुत कॉमन होती है बच्चों में। बच्चा हमारे सामने दोनों हाथों से आंखों को बहुत रगड़ता है, उससे उसकी आंख लाल होती है, पानी आने लगता है और आंखें ऐसी सूजी सूजी सी लगती है। ये पॉसिबिलिटी है कि कुछ एलर्जेंस के वजह से होता है, लेकिन ये पीरियोडिक भी रह सकता है। जब जब ये आंख ऐसी लाल होती है, बच्चों को बहुत खुजाहट होती है, उसका समय समय पर इलाज मेडिकल ट्रीटमेंट द्वारा हो सकता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते रहता है उसका जो इम्यूनिटी पावर है उसके लिए बढ़ती जाती है और ये कुछ समय के बाद में कम होने लगता है। तो लेकिन ये ध्यान रखना है कि जब जब ऐसी शिकायत बच्चे को होती है तब तक उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, आंखों की जांच की पूरी जरूरत होती है। ऐसे समय पे दोनों आंखों पे ठंडी पट्टी भी आप रख सकते हैं। बच्चे को हैंड वॉश, हाथों को अच्छी तरह से धो करके उसके जो हैबिट है उसको बढ़ा सकते हैं। बहुत कॉमन दूसरी चीजें हैं कि जब बच्चा 9 महीने के पहले पैदा हो जाता है तो आंखों की जो ग्रोथ नॉर्मली 9 महीने तक होती है वो नहीं होने के कारण रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी जिसको हम बोलते हैं कि जिसमें पीछे का पर्दा जो रेटिना होता है हमारा वो पूरा ग्रो नहीं होता। ऐसे समय पे भी दवाई डाल करके NICU PICU में बच्चों की जांच की जाती है। और ये भी ध्यान में रखना है कि ऐसे बच्चों को लेजर ट्रीटमेंट या सर्जरी की भी जरूरत हो सकती है। बच्चा बहुत छोटा है इसीलिए उसको निग्लेक्ट नहीं करना है हम लोगों ने, उसका भी पूरी तरह से इलाज संभव है। कभी कभी दोनों पुतलियां सफेद दिखती है बच्चा पैदा होने के बाद, तो इसके लिए भी हम लोगों को कॉर्नियल ट्रांसप्लांट या बाकी की सर्जरीज कर सकते हैं।
एक बहुत अभी जो रिसेंट है, हम लोग जैसे प्रीतम सर ने बोला हमको लेक्चर में कि ऑनलाइन एजुकेशन अब हमारे जैसे डे इन एंड डे आउट वाला प्रोग्राम चल रहा है, तो जिसमें हम पेरेंट्स को भी ये समझना होगा कि उनका भी इन्वॉल्वमेंट उसमें होना पड़ेगा बच्चों के साथ और स्कूल्स के साथ। दो तीन चीजें मैं आपको बताना चाहूंगी ऑनलाइन एजुकेशन के लिए कि बच्चे को छोटा मोबाइल या छोटी स्क्रीन ना दे। अगर आपके घर में पॉसिबल है तो लैपटॉप या टीवी होता है हमारे पास, तो उसको वाईफाई से कनेक्ट करके स्क्रीन पे अगर दिखाएंगे तो उसका जो रेडिएशन है, एलईडी लाइट का जो रेडिएशन आंखों पे आता है वो थोड़ा कम गिरेगा। अनुराधा मैम ने जैसे हमको बताया कि व्हाट इज अ गुड पोस्चर एंड अ बैड पोस्चर, तो उस प्रकार से पोस्चर हमारा अच्छी तरह से रख करके हमको बच्चे को सिखाना है। बच्चे का जो स्क्रीन होता है वो ब्राइटनेस हम लोगों को सेट करना है, ऐसे नहीं कि बहुत डार्क हो गया तो बच्चे ब्लिंक करे बार बार और उनको ज्यादा परेशानी हो, ना ही बहुत कम जिससे बच्चों को देखने में दिक्कत हो। अगर बच्चे को चश्मे का नंबर है पहले से, तो उसको हमको प्रेरित करना है कि वो चश्मे के साथ ही ये सारी चीजें कर पाए। बच्चा जब एक क्लास हो जाता है उसका, या एक क्लास एक वीडियो होता है उसका, तो उसके बाद में बच्चे को बोलना है कि टेक अ ब्रेक, जस्ट स्ट्रेच आउट योर आर्म्स, यानी थोड़े से हाथों को खोलना है, गर्दन को थोड़ा घुमाना है, उनके बैक को थोड़ा सा रेस्ट देना है, थोड़ा सा सिप्स ऑफ वाटर या सिप्स ऑफ जूस लेना है, और थोड़ा खिड़की के बाहर उनको देखने के लिए प्रेरित करना है। क्योंकि हम लोग जब कंप्यूटर या कोई स्क्रीन पे बैठते हैं तो इट इज इंटरमीडिएट डिस्टेंस, तो उसके कारण कंटिन्यू हमारी आंखें जो है वो थक जाती है। दूर लंबे खिड़की के बाहर देखने से हमारी आंखों को उतना रिलैक्समेंट मिलता है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड भाग जिसको अडल्ट है, ये विभाजन ऐसे नहीं है कि इनमें से कोई चीज बड़ों में नहीं होती या एल्डरली में नहीं होती, ये एक जस्ट ए फॉर्मेट है टू सिंप्लीफाई द सीरीज। अक्सर हम लोग देखते हैं कि आंख में कुछ कचरा चला जाए, कभी जो पलक के बाल होते हैं वो चला जाता है, कभी हम लोगों के धूल मिट्टी से कोई कंकर और कभी इंसेक्ट, ऐसी बहुत सारी चीजें हमारी आंखों में चली जाती है। सबसे पहले ऐसे वक्त पे आंखों को अच्छी तरह से, जो टैप वाटर होता है हमारा, उससे हथेली में लेकर के अच्छी तरह से हैंड वॉश करके हथेली में लेके उसको आंख को अच्छी तरह से वॉश करना है। इससे अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता है तो आपको तुरंत आंख के डॉक्टर के पास जाके, क्योंकि ये जो ऐसी फॉरेन बॉडीज जो कि चिपकी हुई होती है आंखों के ऊपर, तो इसको मशीन द्वारा ही निकाला जा सकता है। कभी कभी बच्चे चूना पैकेट जो हम लोग देखते हैं कि टाउन प्लेसेस में बहुत कॉमन है, तो चूना पैकेट से तो नहीं खेलने देना है। पहले घर में भी हम कुछ केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं क्लीनिंग पर्पसेस के लिए किचन्स और इसमें, तो वो देखना है कि वो अगर कभी हमारे स्प्लैश हो जाए आंखों में, तो उसको फर्स्ट थिंग इज यू वॉश योर आई प्रॉपरली, अच्छी तरह से पूरा अच्छी तरह से आंख को धोना है, और उसके बाद में अगर नहीं रिलीफ मिलता है तो देन यू हैव टू गो एंड विजिट अ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। अडल्ट्स में भी जो यंग एज पॉपुलेशन है उनको कभी कभी बचपन से ही चश्मा नंबर रहता है, वो कंटिन्यू उनको करना है। कभी कभी 10वीं 12वीं की पढ़ाई की वजह से बोलो या स्ट्रेस की वजह से बोलो, बच्चे कंप्लेन करने लगते हैं कि कभी कभी बहुत सर दुखता है या आंखों में उनको तकलीफ होती है, तो ऐसे वक्त पे नया नंबर भी चश्मे का लग सकता है, तो जाकर के दिखाना है, ईयरली फॉलोअप जरूर करना है। बच्चे अगर थोड़े बड़े हो जाएं, कॉस्मेटिकली रीजन से अगर चश्मा उनको ना सहाय, तो ऐसे वक्त पे आप कॉन्टैक्ट लेंस उनको देना प्रेफर कर सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत कॉमन है, सभी लोग पूछते हैं कि हम चश्मे का नंबर कैसे निकालें। तो चश्मे का नंबर निकालने के लिए 20-21 साल की उम्र लगभग ठीक होती है। उसमें जो चश्मे का नंबर है वो स्टेबलाइज होना चाहिए आपका चश्मे का नंबर। चश्मा नंबर निकालने के कई उपकरण उपलब्ध हैं, हमारे नागपुर में भी ये सुविधा है। इसके अंदर जो सामने का पर्दा होता है उसके ऊपर हम लोग रेज लेजर से एब्लेट करते हैं, या तो लेसिक है जिसके अंदर दो प्रकार ब्लेडलेस और ब्लेड से माइक्रोटोम से हम लोग इसका सर्जरी कर सकते हैं। प्रेजेंटली अत्याधुनिक तकनीक स्माइल प्रोसीजर है, जिससे भी आप ये जो चश्मा जो आपका स्टेबलाइज नंबर पावर होता है उसको हम लोग हटा सकते हैं। केराटोकोनस एक दूसरी बीमारी है जिसके अंदर आप देखोगे तो नॉर्मली हमारी आंख का कर्वेचर जो होता है वो इस प्रकार से राउंड सर्कुलर होता है, लेकिन केराटोकोनस यानी जिसका कोनिकल प्रोग्रेशन होता है, तो इसमें कुछ इलास्टिक टिश्यूज जो अपना स्ट्रेंथ खो देते हैं, उसकी वजह से ये इस प्रकार से कोनिकल होता है। तो इसमें पहले शुरुआत में कभी एक आंख और बाद में आगे चलकर दोनों आंख भी इन्वॉल्व हो सकती है।
इसमें ट्रीटमेंट ये है कि इसको, ये जो प्रोग्रेशन हो रहा है इसको हम लोगों को स्टॉप करना है। उसके लिए कोलेजन क्रॉस लिंकेज करके एक प्रोसीजर होती है जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, और वो करके हम लोग ये प्रोग्रेशन यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं। कभी कभी जो मैंने एलर्जी बताई वो भी इसके साथ एसोसिएटेड रह सकती है। ये जो सर्जरी करने के बाद हम लोग सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस के बजाय रिजिड कॉन्टैक्ट लेंस इन लोगों को देते हैं, जिससे ये पूरा अच्छी तरह से साफ देख सकते हैं। जब हम लोग 40 की उम्र पे आते हैं तो बहुत से लोगों को नजदीक का देखने में काफी दिक्कत होती है। कुछ लोग उसको इग्नोर करते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं आज नहीं दिख रहा है, शायद कल दिख जाए। मराठीत म्हण आहे की 40वी लागली म्हणजे कुछ तो चेंजेस होते हैं। तो उसी प्रकार आंखों में भी जो हमारे लिगामेंट्स हैं उसको जो पावर चाहिए तो वो नहीं मिल पाता नजदीक का देखने के लिए। तो इस समय पे नजदीक का पढ़ने के लिए मैं सभी जो 40 अराउंड लोग हैं उनको बोलूंगी कि आप नजदीक का चश्मा इस्तेमाल करना शुरू कीजिए, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी देयर टिल यू रीच अ सर्टन एज। तो इसका हैबिट करना और इसको पहनना, पढ़ते समय लिखते समय जो भी नजदीक का काम कर रहे हैं उस समय ये करना बहुत जरूरी है। इस समय पे भी ईयरली फॉलोअप, अगर एक बार चश्मे का नंबर निकाल दिए तो दूसरे अगले साल ही आपको जो डॉक्टर हैं कंसल्ट उनको करना चाहिए। कंजंक्टिवाइटिस या आंख आना ये बहुत कॉमन है। कभी कभी घर में एक को होने के बाद ये, क्योंकि कम्युनिकेबल डिसीज है, ये बाकी के लोगों को और बच्चों को भी होता है। तो हमको ध्यान रखना है, कभी एक आंख में अगर शुरू हो जाए तो बी केयरफुल। बहुत अच्छी तरह से आपको हैंड वॉश करना है। आपके जो पिलो टॉवल या चद्दर होगी या तौलिया जो आप इस्तेमाल करते हो वो सब अलग रखना है। बच्चों को या दूसरों को, किसी को ये कम्युनिकेट ना हो, इसका भी आपको बहुत ध्यान रखना है। ऐसे वक्त पे जैसे ही आपको लगे कि आपको आंख आ रही है, आपको डिस्चार्ज शुरू हो रहा है, आपको मेडिकल कंसल्टेशन की जरूरत है, आपको ब्लैक डार्क गॉगल्स पहनना है ताकि आपको तकलीफ ना हो, और इसका जो कम्युनिकेशन ये दूसरों को भी ना हो। इसका मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल है, 1-2-3 हफ्तों में आपको इससे सप्रेशन हो जाता है। आंखों में कभी कभी पलकों के ऊपर जैसे फोड़ी हो या फुंसी हो, इस प्रकार से मोटी पलकें हो जाती है। इसको जब शुरुआत में, अगर जैसे ये कच्ची रहती है जो शुरुआत में आती है, तो इसका मेडिकल ट्रीटमेंट से भी इलाज हो सकता है। अगर ये बहुत दिनों तक रहती है इसी प्रकार से, तो इसको सर्जरी वाइज छोटा सा एक चीरा जो अंदरूनी आंख के जो हिस्सा होता है उसके ऊपर मारकर फिर इसका जो पस है वो पूरा ड्रेन किया जा सकता है। इसका जब ऐसी होता है तो देखना है कि आपको फिर से चश्मे का नंबर तो नहीं लग गया, कहीं आपको पलकों के ऊपर डैंड्रफ लाइक मटेरियल तो नहीं आ रहा है, कहीं आप गंदे हाथ तो आंखों को नहीं लगा रहे हो। ये सारी चीजें भी आपको देखना जरूरी है। IIT IIM में बहुत बच्चे हैं जो भी कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, जिनका कांस्टेंट एक्सपोजर होता है स्क्रीन पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे काम करते हैं। उनका बहुत कॉमन कंप्लेंट होता है कि आंखें रात के समय तक, मतलब दिन में शुरुआत तो अच्छी हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे वो रात में आते हैं उनके जो आंखों की थकावट है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, वो इरिटेट होने लगते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हम लोग दिन भर जो है स्क्रीन के सामने जो इंटरमीडिएट डिस्टेंस है, लगभग 1.5-1.5 फुट का जो डिस्टेंस है उसके ऊपर काम करते हैं। तो आपको 2-4 चीजें इसके ऊपर ध्यान रखना है कि जब आप क्योंकि ये जो आपका फील्ड है, दिस इज गोइंग टू बी लाइफ लॉन्ग, मतलब आपके उम्र भर ये चलना है कंप्यूटर स्क्रीन के साथ। तो आपको ध्यान रखना है कि आंखें जो है आपकी, आपको पलकें पूरी बंद करना है। हम लोग क्योंकि स्क्रीन पे रहते हैं तो हम लोगों को लगता है कि कहीं ये मिस ना हो जाए, कहीं ये मेरे से निकल ना जाए, तो हम लोग बहुत आंखें मोटी करके स्क्रीन की तरफ देखते रहते हैं। तो ऐसा ना करना है। बीच बीच में आपको आंखें पूरी अच्छी तरह से बंद करना है और फिर खोलना है। तो इसका हैबिट करने के लिए आप जो आपका कीपैड है उसके ऊपर आप आदत डालिए कि जैसे कोई स्पेस बटन दबा रहा हो या फिर एंटर बटन दबा रहे हो, तो आप उसको आदत कर लीजिए कि आपको पलकें अच्छी तरह से बंद करके खोलना है। इससे क्या होता है कि जो हमारे ग्लैंड्स है वो जो सिक्रीशन करते हैं, उसका आंखों की परत के ऊपर पूरा जो लुब्रिकेशन है वो आ जाता है। उसके साथ साथ 20-20-20 करके ट्रीटमेंट ऑप्शन है, जिसमें
हर 20 मिनट के बाद, जैसे आप कर रहे हो 20 बोलो या 25-30 मिनट के बाद आपको अपनी जगह से उठना है। 20 सेकंड के लिए आपको अपनी आंखों की तरफ ध्यान देना है और 20 फीट अवे यानी थोड़ा खिड़की के बाहर दूर जगह पे आपको देखना है, ताकि जो आपका दिन भर जो समय नजदीक के स्क्रीन पे जाता है जिससे स्नायु जो होते हैं वो थक जाते हैं, तो इसको रिलैक्स करने के लिए आपको दूर देखना है। तो 20-20-20 ये आप याद रख सकते हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी बहुत कॉमन है, जिनको काफी बचपन से डायबिटीज होता है या कम उम्र में जब डायबिटीज लगता है, तो हम लोग देखते हैं कि जैसे ये नॉर्मल रेटिना है जिसके अंदर डिस्क और मैक्यूला बोलते हैं हम इसको, लेकिन ये डायबिटिक रेटिना है जिसमें आप देखोगे कि बहुत सारे रक्तस्राव के धब्बे यहाँ पे दिखते हैं और बहुत सारे एक्सुडेट्स हैं जो कि येलोइश कलर में दिखते हैं। तो ऐसा ये स्टेजेस नहीं आना चाहिए, इसलिए ईयरली फॉलोअप आपके डॉक्टर के साथ करना है। दवाई डाल करके जो शुगर के पेशेंट्स हैं उनको जांच करना बहुत जरूरी है। इसका ट्रीटमेंट ऑप्शंस लेजर इंजेक्शंस या सर्जरी भी हो सकता है। 2-3 आपकी इन्वेस्टिगेशंस करने के उपरांत और एज फैक्टर को देखते हुए डॉक्टर यूजुअली आपको प्रिस्क्राइब करता है कि आपको कौन सी ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी सूट होगी। इसके साथ साथ जो भी आपके बेस पैरामीटर्स जैसे शुगर, बीपी और दूसरी चीजें होती होगी, थायराइड, उसका भी साथ साथ में बहुत ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं जो एल्डरली पॉपुलेशन है उनके बारे में जानकारी पाने के लिए। रिफ्रैक्टिव एरर्स देखोगे तो आप सभी वर्ग में आता है। आपको जब आप पहले से ही चश्मा इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको हर साल में देखते रहना है कि कहीं मेरे चश्मा बदल को तो नहीं गया, मेरा नंबर चेंज तो नहीं हो गया। इसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि जो चश्मा पहन रहे हैं हमारे बुजुर्ग, वो उससे उनको कितना क्वालिटी है, कितना क्लियरिटी ऑफ विजन है, ये दोनों चीजें देखनी है। जैसे मान लो अगर क्वालिटी और क्लियरिटी दोनों कम हो रही है तो कहीं हम मोतिया की तरफ तो नहीं जा रहे, ये भी ध्यान रखना है। मोतिया ऐसा नहीं है कि जो अडल्ट पॉपुलेशन में उनमें नहीं होगा, उनमें भी पॉसिबिलिटी हो सकती है मोतिया होने की। इसमें क्या होता है मोतिया में कि ये जो हमारा नॉर्मल लेंस है इसके अंदर ओपेसिफिकेशन और क्लाउडिंग आ जाता है, तो जो नॉर्मल हमारी रेज आती है आंखों में तो वो आने के लिए हमको एक जैसे बोलो कि कुछ बीच में हमको प्रॉब्लम होती है, ये कैटरैक्ट की वजह से या ओपेसिफिकेशन की वजह से। तो इसमें जब मरीज हमको कंप्लेन करते हैं कि कुछ धुंधला सा दिखता है, जैसे कांच को हम लोग अगर पहुंच लेंगे तो जिस प्रकार से दिखता है उस प्रकार से दिखता है, या फिर रात में देखोगे तो लाइट के आजू बाजू आपको कुछ हेलोज या ग्लेयर दिखाई देता। तो इसमें क्या करना है, मेडिकल ट्रीटमेंट से ये ठीक नहीं होता। इसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। फेको सर्जरी इज द एडवांस टेक्नोलॉजी। फेको सर्जरी में क्या होता है कि ये जो पुतली होती है काली हमारी, इसके अंदर छोटा सा छेद करके फेको मशीन द्वारा ये जो कैटरैक्ट होता है, जो मोतियाबिंद होता है, वो अपनी बैक पे से हम लोग इस मशीन द्वारा निकालते हैं और उसी मशीन द्वारा ये जो लेंस है इसको फोल्डेबल लेंस बोलते हैं, तो इसको फोल्ड करके उसी छोटे से छेद में से इस लेंस को, जो आपकी नॉर्मल लेंस थी उसी जगह पे, इसको यहाँ पे स्टेबिलाईज करते हैं। तो ये जो मोतिया का जगह था यहाँ पे ये लेंस हम लोग डाल देते हैं। लेंस निकालने के कुछ मशीन्स अलग होती हैं, वो बिफोर ऑपरेशन हम लोग निकालते हैं। तो आप देखोगे कि जैसे ये सफेद मोतिया है और बाद में ये इंट्राओकुलर लेंस डालने के बाद तो क्लियरिटी आप देख पाओगे कि यहाँ पे मरीज को कुछ नहीं दिखाई देता, जबकि यहाँ पे बहुत क्लियर हो जाता है। दूसरी एक बीमारी है काला मोतिया, जिसको कांच बिंदु भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि नॉर्मली हमारी जो आंख है जिसके अंदर पानी हमेशा चलता रहता है, ऐसे नहीं है कि आंख है इसलिए हमको लगता होगा कि आंख में कुछ पानी नहीं होता, लेकिन आंख भी पानी से बनी हुई है, जिसके अंदर ये जो पानी होता है ये बाहर भी निकलता है नसों द्वारा। कभी कभी अगर ये नसें बंद हो जाती है कोई कारणवश तो इसका प्रेशर अंदर की तरफ बढ़ता है, बाहर नहीं पानी निकलता, इसलिए प्रेशर जो है वो आंख के पीछे के पर्दे पे जाता है। यहाँ पे हमारी नस होती है, ये नस के ऊपर प्रेशर आने की वजह से, नॉर्मल अगर इतनी नस होती है तो प्रेशर आने की वजह से डैमेज होते होते हमारी जो नस होती है उसका लगभग जो पैलार है वो बढ़ता जाता है। और क्योंकि ये इरिवर्सिबल डिसीज है, इसमें हम लोग जो डैमेज हो चुका है उसको फिर से नहीं लेके आ पाते। तो आपको ध्यान रखना है कि 40 एंड अबाउ हर साल जांच करवाते रहें। जब आपको लगे कि आपको इस प्रकार का कोई डायग्नोसिस बताता है तो आपको ट्रीटमेंट की तरफ भी ध्यान देना है।
डॉक्टर्स यूजुअली इंट्राओकुलर प्रेशर जो होता है उसके हिसाब से, आगे आपकी उम्र के हिसाब से, कभी एसोसिएटेड फैक्टर्स होते हैं, फैमिलियल हिस्ट्री भी इसमें पॉजिटिव अगर रहती है तो उसके हिसाब से मेडिकल या सर्जिकल ट्रीटमेंट के दोनों अवेलेबल हैं, और उसके हिसाब से डॉक्टर एडवाइस आपको करेंगे, या तो आपको मेडिकल की जरूरत है या आपको सर्जिकल की जरूरत है। तो ये वाली जो डिसीज है इसमें इरिवर्सिबल डैमेज रहने के कारण आपको थोड़ा इसमें ज्यादा ध्यान देना है। बाकी की बहुत सारी डिसीजेस हैं जिसमें बहुत कॉमन है नखूना, हम जिसको बोलते हैं टेरिजियम। अगर ये आंखों के नजदीक होता है तो हमको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर जैसे मान लो ये पुतली की तरफ अगर जा रहा होगा तो इसका सर्जरी करके इसको निकालना बहुत जरूरी है। कभी कभी ड्राई आईज, कभी हमको लगता है ये यूजुअली ड्राई आईज सिस्टमिक डिसीजेस के साथ एसोसिएटेड रहता है, जिसमें हमको कभी कभी अचानक लाल हो जाती है हमारी आंखें। कभी हमको लगता है कि हमारे आंखों में कुछ खुरदुरापन लगता है, जैसे फॉरेन बॉडी कुछ हमारी आंखों में है। तो ऐसे वक्त पे ड्राई आई का भी आपको पूरा वर्कअप और चेकअप कराना बहुत जरूरी है। हम आते हैं कि ड्रॉप्स कैसे डाले जाएं, क्योंकि हम लोग ड्रॉप्स तो ले जाते हैं लेकिन हमको ये नहीं पता होता कि अब इसकी शुरुआत कैसे करें। घर में अगर मरीज खुद डाल रहा होगा दवाई तो अच्छी तरह से हाथ धोना है, कोई अगर और डाल रहा होगा फैमिली मेंबर्स से तो उनको भी अपने हाथ अच्छी तरह से धोने हैं। मरीज को आप या तो लेटाओ, अगर वो कुर्सी या सोफे पे बैठ रहे होंगे तो भी चलता है। इसके अंदर हाथ अच्छी तरह से धोने के बाद आपको ड्रॉप को जो है थोड़ा सा शेक करना है, क्योंकि कभी कभी सेडिमेंट्स जो होते हैं ड्रॉप के अंदर के वो नीचे बेस पे होते हैं, तो उसको अच्छी तरह से शेक करना है आपको। अच्छी तरह से बगैर टच करे आपको नोजल निकालना है, टिप को आपको टच नहीं करना है, ध्यान देना है। बैठने के बाद या लेटने के बाद मरीज को आपको बोलना है कि ऊपर की तरफ देखें, थोड़ी सी गर्दन पीछे की तरफ हटा करके कोई सीलिंग को देखें या फैन को देखें। उसके बाद में जैसे इस चित्र में बताया गया है कि आपको नीचे की पलक थोड़ी खींचनी है। यहाँ पे एक प्रकार का पॉकेट बनता है जिसमें आपको ये एक ड्रॉप छोड़ना है। अगर मल्लम है तो क्या करना है, मल्लम जैसे हम लोगों का आता है तो बासमती चावल जितना पक जाता है उतनी मल्लम आपको इसी जगह पर इसी जो पॉकेट बनता है उसके अंदर ही आपको छोड़नी है। छोड़ने के बाद आपको आंखें अच्छी तरह से बंद करनी है, और बंद करके अगर पॉसिबल है तो आंख के बाजू में जो नाक की तरफ हमारा एक आउटपुट होता है उसको बंद करना है। कभी कभी दवा जो है हम लोग आंखों में डालते हैं लेकिन गले में उसका स्वाद आता है, तो इसी कारण आता है कि नाक के द्वारा वो गले में उतरती है। तो साइड से अगर आप बंद करोगे तो जो आंखों का पूरा जो ड्रॉप है वो पूरा आंखों में ही रहेगा और उसका असर पूरा दिखेगा। आपको बंद करते समय भी फिर से ध्यान रखना है कि आपको टिप पे टच नहीं करना है, क्योंकि हमारी आंखों के बैक्टीरियाज और जो बाकी के संसर्गक पार्टिकल्स होते हैं वो कहीं ड्रॉप पे न लग जाए, इसका भी आपको ध्यान रखना है। अच्छी तरह से बंद करने के बाद अगर आपको दूसरी आंख में डालना है तो सेम प्रोसीजर रिपीट करना है। अगर आपको दूसरा और कोई ड्रॉप या मल्लम डालनी है तो इसी प्रकार से आपको ये पूरा फॉलो करना है। आखिरी के कुछ स्लाइड्स पे आते हैं जहाँ पे आई डोनेशन और करुणा आई केयर के बारे में मैं आपको बताऊंगी। आई डोनेशन इसमें क्या होता है कि मृत्यु उपरांत, मतलब जब आपका देहांत हो जाता है उसके बाद में आपकी आंखें जो है वो अगर किसी और के इस्तेमाल में आती होगी तो इससे अच्छा और भला काम हम लोग क्या कर सकते हैं। इसको नेत्रदान, ये श्रेष्ठ दान बताया गया है। इसका जो फायदा है किन मरीजों को होता है, तो जिन मरीजों की जो पुतली होती है उसमें जब सफेदी आ जाती है, इन मरीजों का उसको बहुत ज्यादा फायदा होता है। भारत में जो आंकड़े दिखाए गए हैं उसके हिसाब से हम लोगों को लेस देन 50% टिश्यू अवेलेबिलिटी है, मतलब काफी मरीज अभी ऐसे हैं जिनको फायदा नहीं हो पाता नेत्रदान, वो देख नहीं सकते क्योंकि उनको जिस प्रकार का टिश्यू चाहिए, जिस प्रकार की उनको कॉर्निया चाहिए वो नहीं मिल पाता, क्योंकि अभी प्रेजेंटली हम लोग ह्यूमन डोनेशन पे निर्भर हैं। ऐसी कोई सिस्टम नहीं है जहाँ पे कॉर्निया हम लोग आर्टिफिशियली डेवलप कर पाए। कुछ रिसर्च चल रहे हैं लेकिन प्रेजेंटली वो अवेलेबल नहीं है। इसीलिए सभी लोगों को मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगी कि मृत्यु उपरांत ये आप दान करने का प्रण ले। बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि कौन दान कर सकता है। कोई भी दान कर सकता है, पुरुष, महिला, बच्चे, बूढ़े, जिसका ऑपरेशन हो चुका है वो भी दे सकता है,
कभी लगता है कि मेरा तो इतना नंबर मोटा है, मैं कैसे, मेरी तो पहले से ही आंखें कमजोर हैं, मैं क्या किसी को नजर दे पाऊंगा या दे पाऊंगी। तो ऐसा नहीं है। आप अगर डायबिटिक हो, हाइपरटेंसिव हो, आपको कोई दूसरी बीमारी हो जिसका संसर्ग नहीं हो सकता, जो नॉन कम्युनिकेबल हो, आप सभी लोग ये दान कर सकते हैं। जब अगर दान करने, जैसे कोई डोनर है जिसको दान करना है, उसने अगर पहले ही बताया होगा कि मुझे दान करना है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं, और फैमिली मेंबर्स में अगर किसी को लगता है कि नहीं, हम हमारे माताजी या पिताजी का आंखों का दान करना चाहेंगे, तो ऐसे वक्त पे जो फैमिली मेंबर्स हैं वो भी डिसाइड कर सकते हैं कि कंसेंट दे सकते हैं कि हमारे डोनर का आप ये आंख ले सकते हैं। ऐसे वक्त पे क्या करना है, घर पे ही नहीं, अगर आईसीयू में भी देहांत हो जाता है तो भी हम लोग नेत्रदान या नेत्र लेने के लिए आ सकते हैं। अगर घर पे होता है तो ध्यान देना है कि जो डोनर है उसकी आंखें आपको अच्छी तरह से बंद करनी है। 4-6 घंटे में अगर इसका हम लोग ले सके आंखें, तो ये सबसे अच्छा समय होता है। जो डोनर है, जो मृत शरीर होता है, उसके ऊपर का फैन आप बंद कर दीजिए। उसका तकिए से थोड़ा सा जो सर है उसको थोड़ा सा उठाना है। नजदीक की जो भी आई बैंक अवेलेबल होगी वहां पे आपको फोन करके बताना है कि पता अच्छी तरह से देना है और 2-3 फोन नंबर देना है, ताकि जल्दी से जल्दी वो आपके पास आ सके। अगर घर पे होता है तो डेथ सर्टिफिकेट के देखने के बाद ही हम लोग उसको ले सकते हैं। तो डेथ सर्टिफिकेट आपको रेडी रखना है। जब हम लोग ये सर्जरी करते हैं, जो हम लोग नेत्रदान लेते हैं जब डोनर से, तो कभी कभी हमको लगता है कि कहीं जो हमारे जो मृत शरीर है उसके ऊपर कुरूपता ना आ जाए, ऐसा ना लगे कि कुछ पट्टी बांध दी या कुछ ब्लड स्टेन्स हो जाए या कुछ गड्ढा गिर जाए। तो ऐसे कुछ भी नहीं होता। ये पलकों के अंदर की चीज है जो कि हम लोग निकालते हैं, और वहां पे बॉल सॉकेट जो होता है उसको कन्फॉर्मर की मदद से, सहायता से हम लोग उसको बराबर से लगा देते हैं। तो आपको बाहर से कुछ भी नहीं समझेगा कि इनकी आंख जो है वो हमने दान की हुई है करके। साथ में जब ये करते हैं तो थोड़ा सा 5-10 ml ब्लड हमको लेना पड़ता है रूल आउट करने के लिए, कोई कम्युनिकेबल डिसीज तो नहीं है साथ में। इसके बाद जो फैमिली होती है उसको आई बैंक की तरफ से सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन दिया जाता है, और जहां जहां उनके लेक्चर्स होते हैं वहां पे उनको सम्मानित भी किया जाता है। We are coming to the last slide, that is Corona Eye Care. हम सभी जानते हैं this is something, such a pandemic that we have never faced, and probably we will never face in our life now. Corona Eye Care, आंख के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि सभी लोग जानते हैं कि हाथ धोना है। हाथ धोने के बाद भी हमको आंख को, नाक को या मुंह को क्यों हाथ नहीं लगाना है? क्योंकि these are the exposed mucosal membrane, मतलब यहाँ से जो कीटाणु होते हैं उनका एंट्री पॉइंट जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि जो एक्सपोज म्यूकोज होता है उसके ऊपर से ये जल्दी अंदर चले जाते हैं। तो आंखों को, नाक या मुंह को हाथ नहीं लगाना है, ताकि जो कीटाणु है वो हमारे शरीर में ना उतरे। इसके लिए सबसे पहले तो है कि कुछ लगाना ही नहीं है, हाथ लगाना ही नहीं है। अगर आपको लगे इचिंग हो रही है या कुछ हो रहा है तो बिल्कुल अच्छी तरह से हैंड वॉश करने के बाद एक गीला कपड़ा या तौलिया रख के आंखों की पलक बंद करके फिर आप थोड़ा सा उसको सहला सकते हैं। अदरवाइज इट इज एडवाइजेबल कि आप इसको बिल्कुल टच ना करें। So I hope this was helpful for you, and I thank JCI Nagpur Medico and all the participants for your patient listening. Thank you so much. Thank you, Dr. Kavita. I think it was a wonderful information what you have shared with us today. और बहुत अच्छी जानकारी, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपने हमें बताई how to take care of eye diseases के बारे में. But most important message what you have given is about the eye donation. एंड आई थिंक आज जितने भी हमारे यहाँ पर सब मौजूद है उन्होंने ये प्रण जरूर लेना चाहिए कि हमने हमारी आई डोनेट करना है। ये बहुत जरूरी है ताकि कोई और भी अपनी आई साइट वापस ले सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन एंड वी हैव सम क्वेश्चंस। मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि अगर कोई आपको सवाल है तो आप चैट बॉक्स में उसे डाल सकते हैं या आप हैंड रेज कर सकते हैं। मैं जहाँ चैट बॉक्स के क्वेश्चंस होने के बाद मैं आपको अनम्यूट करूंगी। और just before going ahead to the question answer session, I would like to inform all the participants that जैसे ये हमारा सीरीज हम ले रहे हैं, ये हमारा 5th टॉक है और अगला टॉक हमारा है बहुत ही इम्पोर्टेंट GI डिसऑर्डर्स, यानी कहीं पर किसी को कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ है, किसी को एसिडिटी, गैसेस या फिर कैंसर्स रिलेटेड टू स्टमक एंड GI। इसके बारे में चर्चा होगी डॉक्टर शंकर जंवर सर के साथ में।
और इसके ये सैटरडे को होगा शाम को 4:30 बजे और इसके डिटेल्स आपको भेज दिए जाएंगे, तो जरूर जुड़िएगा। Now moving ahead towards the question answer session, Dr. Kavita, there are some questions for you. What care should be taken when patient is diagnosed to develop cataract? Developing cataract, patient has a developing cataract, and what care should be taken? देखो, कैटरैक्ट का कोई मेडिकल ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं है, तो मरीज को अगर मोतिया के वजह से देखने में दिक्कत अगर होती है तो दैट इज अ साइन, दैट इज अ पॉइंट दैट यू शुड गो एंड गेट ऑपरेटेड। इसके अंदर आप जैसे सभी लोगों के लिए आंख के लिए जो लाल पदार्थ होते हैं जैसे गाजर, टमाटर, बीट हो, ये सारी चीजें को आप सेवन कर सकते हैं, लेकिन कोई पर्टिकुलर गोली या दवाई नहीं होती जिसकी वजह से हमारी जो प्रेजेंट कैटरैक्ट है उसको हम लोग नलीफाई कर सके। तो इफ कैटरैक्ट इज देयर और मरीज को अगर परेशानी हो रही है तो आपको जाकर के दिखाना है ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को, और वहां पे जाकर के आपको सर्जरी के लिए ऑप्शन चूज करना है। Great, thank you. Your next question is, please suggest drops for children to take care of eyes due to stress of online classes. नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि देखो, बच्चों में या बड़ों में कोई ड्रॉप्स नहीं डालना है, क्योंकि एवरी ड्रॉप हैज सम और द अदर फॉर्म ऑफ प्रिजर्वेटिव। तो नॉर्मल आप आंखों को अच्छी तरह से धोइए बच्चों को, और जैसे मैंने बीच में बताया कि एक सेशन अगर बच्चों का हो जाता है, जैसे 15-20 मिनट का अगर टॉक हो जाता है, तो आस्क देम टू गेट अप, आस्क देम टू मूव अराउंड, उनको थोड़ा सा स्ट्रेच करने के लिए बोलिए, आंखें बंद करके खोलने के लिए बोलिए, और उसको उसके साथ साथ थोड़ा सा क्योंकि ये इंटरमीडिएट डिस्टेंस होता है तो थोड़ा सा दूर देखना है। तो कोई ड्रॉप्स के लिए आप मत जाइए, क्योंकि ड्रॉप्स हैज सम और द अदर फॉर्म ऑफ प्रिजर्वेटिव एंड वी डोंट वांट चिल्ड्रन की वो उसमें जाए। I think just the eye relaxation technique where you can close your eyes for a few minutes should help. Yes, definitely. Now another very important question, and I think we have been talking to Dr. Pritam Chandak sir. We have asked him so many times, and it's the same question. I would like to inform all the participants here that हमारी जो पहले के टॉक्स हैं, they are available on YouTube channel JCI Nagpur Medico 2020. तो पैंडेमिक पेरेंटिंग और स्किन डिजीजेस और भी डेंटल ट्रीटमेंट, ये सबसे रिलेटेड जो टॉक्स हुए हैं वो आपको YouTube चैनल पर मिल जाएंगे, JCI Nagpur Medico 2020. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मच टाइम टू स्पेंड ऑन स्क्रीन एवरी डे? ऐसे कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, जितना मिनिमम हो सके उतना देखो, क्योंकि अभी तो क्योंकि वी हैव लॉट ऑफ एम्पल टाइम, तो वी आर मोर बिजी ऑन आवर स्क्रीन्स। इफ यू हैव अ लिटिल बिगर स्क्रीन तो बहुत अच्छा है, मिनिमम जितना आप हो सके। कोई ऐसे नंबर आपको बताना मुश्किल है कि इतना घंटा देखोगे तो आंखों को कुछ नहीं होगा। अगर आपको जैसे मान लो कुछ बहुत लंबा भी काम करना है तो टेक ब्रेक्स इन बिटवीन एंड देन यू कैन कंटिन्यू। जैसे आई रिलैक्सेशन और ये जो सारी चीजें बताई है टॉक में, उसी का पालन करके जितना जरूरी हो सके आप उतना उसको यूज कीजिए। बच्चों में, बड़ों में, और जैसे अडल्ट को मैंने बोला कि 20-20-20 का फॉर्मूला जो है वो भी आप इसमें यूज करोगे तो एट द एंड ऑफ द डे आपको थकावट नहीं महसूस होगी आंखों में, एंड यू विल बी फ्रेश इनफ टू वर्क। और एक मैं बात कहना चाहूंगी कि रात को सोने के पहले एटलीस्ट स्विच ऑफ योर स्क्रीन्स, वेदर इट इज मोबाइल और टीवी स्क्रीन, क्योंकि दीज ऑल एमिट ब्लू रेडिएशंस। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो सेल्स होते हैं they start working and it is not good for your macula and the retina as well. तो इसका भी ध्यान रखना है कि सोने के पहले हम लोगों को आदत होती है कि हम तो सोते समय तक मोबाइल देखते हैं और जब नींद आती है तब फिर मोबाइल बंद करके साइड में रखते हैं। तो दिस इज अ बैड हैबिट। स्टार्ट switching off your screens at least an hour before you sleep. Yeah, thank you so much. But in general, I think what Dr. Pritam Chandak had suggested, and according to the Pediatric Association also, 2 to 8 years में maximum 1 hour of screen time, and 8 to 18 years में it should be maximum 2 hours, and that too with break. तो अगर आप जैसे अभी ऑनलाइन स्कूलिंग भी जो शुरू है, वो लोग आई थिंक लगभग 10 से 15 मिनट का 20 मिनट्स का सेशन लेते हैं, देन दे गिव अ ब्रेक ऑफ 15 मिनट्स। सो आई थिंक वो जो ब्रेक है उसमें कोई और स्कूलिंग छोड़कर और कोई ना देखें, जैसे यूट्यूब बच्चे। तो आई थिंक दैट विल हेल्प। इसके बाद में नितिन सोमानी सर ने हैंड रेज किया है, तो आई वुड लाइक टू सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो। यस सर। हाँ, गुड इवनिंग। मुझे ये ना मेरे मम्मी का इसका कैनाकॉर्ड का इंजेक्शन लेती है, उसको रेटिना का प्रॉब्लम है। औरंगाबाद के जो आशीष होलानी जी डॉक्टर है उनकी ट्रीटमेंट चालू है, और एलवी प्रसाद ने भी बताया है, तो उसको हर 6 महीने में वो इंजेक्शन लेना पड़ता है। तो बार बार फिर वो तकलीफ, और एजरॉन भी कभी कभी लेना पड़ता है।
तो इसको कोई ऐसा परमानेंट इलाज है क्या, कि जैसा तो होलानी जी ने बताया कि इसको कोई इलाज नहीं है, यही करते रहना पड़ेगा, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए थी, जो इंजेक्शन निकल जाए और ये निकल जाए, मतलब एजोरॉन गोली। नहीं, क्या होता है कि ऐसे वक्त पे ये जो इंजेक्शन देने का मतलब होता है कि इंजेक्शन से आपका जो जितना ड्यूरेशन है 3-6 महीने का जो ड्यूरेशन है, वो इंजेक्शन उतने दिनों तक काम करता है। इसके लिए कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। इसमें हम लोगों को जो प्रेजेंट विजन है आपका, तो उसको उतना ही रखने के हिसाब से ये सारी ट्रीटमेंट्स हम लोग देते हैं। तो जब तक आप ट्रीटमेंट लोगे तब तक हो सकता है आपकी नजर, आपके माताजी की नजर उतनी बनी रहे, तो दैट इज आवर एम। तो इसके लिए कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है एट टुडेज पॉइंट, लेकिन ये थोड़ा सा दिक्कत वाला होता है कि हर बार जाओ और इंजेक्शन लो, बट दैट इज द ओनली मोड ऑफ ट्रीटमेंट अवेलेबल प्रेजेंटली। तो मेरे ख्याल से आपको वही कंटिन्यू करना पड़ेगा। ओके ओके, वही मेरे को ये था, क्योंकि हमने काफी जगह बताया तो सभी जगह यही आया, सासवड़े सर और जो भी लोकल भी बाकी जो ट्रेन डॉक्टर्स है, सभी ने बोला कि दिस इज द ओनली ट्रीटमेंट। बाकी वो शी इज नॉट डायबिटिक, ओनली हाइपरटेंशन वगैरह, बाकी ऑल हेल्थ इज गुड, सो दैट इज द ओनली वन ट्रीटमेंट व्हिच इज गोइंग ऑन, इज द करेक्ट? बराबर है, बराबर है। ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Next question for you, Dr. Kavita, is how useful are Blu-ray glasses? UV ray, which glasses? Blu-ray glasses. Yes, if you are on screen, ये जो glasses होते हैं तो they reduce the entry of these blue radiations जो कि LED screen से निकलते हैं, तो definitely those are helpful glasses whenever you are on screen. Try to put on them. Shields भी मिलते हैं, अगर आप बहुत देर तक computers पे काम करते हो या laptops पे, तो screens आते हैं जो कि filter करते हैं थोड़े rays इनके blue radiations के, तो that is helpful whenever you are using a screen. Right. So thank you so much. As of now, I can see only these many questions here. And I would like to thank all our chief guests, Dr. Gopal Arora sir, and all the past presidents, Viral Shah sir, Sachin Devkar sir, who have joined us, zone officers and co-presidents, and all the participants who have joined us today. Dr. Pradnya Ladda and Dr. Anuradha Punyani for the active participation and the introduction. Thank you so much. Since our secretary madam is busy today with her patients, I am giving a vote of thanks on her behalf. So thank you so much, Dr. Kavita, for such a wonderful and interactive session and the amazing information. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you for the opportunity. Thank you. All right. With the kind permission, I'm ending the meet.